आप फिर इम्प्रेस करने के लिए काम नहीं करते, आप कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। तो इसमें प्रूव नहीं करना है किसी को, इसमें इम्प्रूव करना है। There is anyways no insecurity with the guys because I have my own space. And as a person, I'm very secure. If I'm doing two glamorous roles where I'm not really giving a lot of input, so what I do is when I am doing too glamorous, I make sure the other next three will be absolutely different. No makeup. I'll end up being a pregnant woman. I'll end up being a serial killer. आज काफ़ी डिबेट्स चल रही है अबाउट द वर्किंग आवर्स एंड द वर्किंग सिचुएशंस इन द फिल्म इंडस्ट्री कि हम 8 आवर्स काम करना चाहिए। मेरा मानना है कि 8 घंटे के ऊपर क्रिएटिव काम नहीं करना चाहिए अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहते हैं। और जो भी लोग अच्छा काम करते हैं या अच्छा काम लेना चाहते हैं, विश्वास कीजिए वो इस 8 घंटे के फॉर्मूला पे काम करते हैं। रेणुका जी ने एक फिल्म बनाई थी, दो फिल्में वो बना चुकी हैं। अगर उन्होंने कहा है कि 10 o'clock से 6 o'clock उनकी शिफ्ट है, तो 10 बजे रेडी विद मेकअप नहीं है। 10 बजे आप आइए और 6 बजे आपकी पैकअप है, आप 6:15 बजे अपनी मीटिंग रख सकते हैं। हम काम वो देना चाहते हैं आपको, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो इस समय का हमारा पोटेंशियल है। हम आपके साथ चीटिंग नहीं करना चाहते क्योंकि आप पैसे में हमारे साथ चीटिंग नहीं करते। Well, very few times do I watch a trailer of a film that takes me on a fun and thrilling roller coaster ride. But well, One Two Cha 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 has managed to do that. And so to discuss more about the movie, the entire cast joins me today only on FPJ Showbiz. Hello everyone, thank you so much for joining in. I feel the trailer is very well cut in a way where I was thoroughly enjoying watching it, and I was like, what is happening? And now I want to watch the movie to know more about it. What was your first reaction, if in just one line you all can say, when you watched the trailer for the first time? Because you all have shot for the movie, so you all knew the plot. Same thing. Same. क्योंकि हमने भी फिल्म नहीं देखी है। Yeah. तो हम भी चाह रहे हैं कि मतलब एक्चुअली ट्रेलर इतना मज़ेदार लग रहा है कि हम भी चाह रहे हैं कि यार ये फिल्म कैसी बनी है यार। हम लोगों ने जो मज़े किए है वो ट्रेलर में ही इतने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, तो फिल्म में तो और भी ज़्यादा मज़ा होगा। Okay. What about you, Anand? आई थिंक वो जैसे कहते हैं ना, सारे फ्लैशबैक्स आते हैं। तो मेरा पहला रिस्पॉन्स तो यही था कि ये सारे मोमेंट्स को हम लोगों ने जिया, और फिर उसके बाद में नाउ सेलिब्रेटिंग आवर फिल्म, द फर्स्ट सेलिब्रेशन इज द टीजर. So I think celebrating in this way and kind of reliving all those memories, I'm really looking forward to watch it and to see how our audience will react and respond. Lovely. So what about you? जो क्योस है वो अनफोल्ड हो रहा है, तो अगर क्योस इंटरेस्टिंग है तो जब अनफोल्डिंग होगी उसकी तो वो कितनी इंटरेस्टिंग होगी, बिल्कुल। यही उस ट्रेलर के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। Okay. Naira? I think this movie is gonna give an insight to the entire year that your year is gonna be quite a roller coaster, hysteric and funny year, because the movie itself speaks a lot about how crazy and how funny it is. See, as you see in the trailer, there is a lot of chaos, a lot of the people are trying to search for something, chasing something, finding something, screaming at something, hiding from something. So it's a lot of things that is happening, and that's what builds curiosity. That Absolutely. what is this movie actually all about? What are these guys doing over here? Yeah. What are they here for? And what is that one thing that they all are after? So yeah. Okay. Harsh? So we have been shooting this film from like past 2.5 years or something. So उसके सारे ग्लिम्स, क्योंकि इतना शूट किया हमने, कहाँ शूट किया सब भूल गए थे दिमाग से, और वो एकदम से जब ट्रेलर में देखा तो मज़ा आ गया देखकर। सो या नहीं, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे जी। हमने 2.5 साल शूट नहीं किया। नहीं, 2.5 साल शूट नहीं किया। हमने 2.5 साल शूट नहीं किया है, उससे मैसेज गलत जाता है कि 2.5 सालों से 2.5 साल से लगातार शूटिंग, 2.5 साल हमने शूट नहीं किया। इस फिल्म को फ्लोर से लेके थिएटर तक आने में 2.5 साल लगते हैं, क्योंकि जैसा केओस है उसमें जिस तरीके का, वो शूट करने में समय लगता है। यस यस। मल्टी स्टारर्स ऑडियंस को हमेशा से ही देखना बहुत पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली टुडे वी डोंट गेट टू सी अ लॉट ऑफ मल्टी स्टारर्स बिकॉज ऑफ दिस clashes between actors that we've often heard about. Producers have spoken about it कि दो एक्टर्स कभी भी एक मल्टी स्टारर में एक्ट नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल इनसिक्योरिटीज़. व्हेन यू वर्क इन अ मल्टी स्टारर एंड ऑब्वियसली everyone comes from a certain background, how do you manage to be as secure
ताकि आपका और आपके को एक्टर का भी परफॉर्मेंस एलिवेट हो? See, first of all, I am the lady in the film. So there is anyways no insecurity with the guys because I have my own space. Yeah. And as a person, I'm very secure because I know what I can bring to the table. And I do know that there will be a lot of ups and downs in life. That should not bother you. So you do your best and give your best and then rest. Just leave it to the God. कोलैबोरेटिव और कलेक्टिव काम है, आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। तो हमेशा आपको एक दूसरे के साथ ही चलना है, एक दूसरे के साथ ही काम करना है। आपके को एक्टर का काम जितना अच्छा होगा उससे ही आपका काम अच्छा होने वाला है। तो बस यही एक बेसिक चीज़ है मुझे लगता है कि, और अगर आपके एक्टर्स भी मतलब एक्टर्स भी इतने सुलझे हुए हो जिनसे आपको सीखने का मौका मिल रहा है, तो उनसे भी अगर आप सीन करते वक्त, सीन ना करते वक्त भी कुछ सीख रहे हो, कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये टीम वैसी थी कि हर एक इंसान कुछ ना कुछ ऐड कर रहा था, जो स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ था उससे भी ज़्यादा कुछ तो ऐड कर रहा था। आई थिंक ज़्यादा सिक्योर इसलिए भी फील किया क्योंकि सारे कैरेक्टर्स जो रिटन हैं वो इतने बढ़िया तरह से डिफाइंड है ना कि कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि कोई स्पिल ओवर्स हैं या फिर कोई किसी का कोई सीन खा लेगा। सो आई थिंक द राइटर ऑल्सो कीप्स योर एंड द डायरेक्टर they kept us very protected. They felt us very empowered as the way the characters are written. So I think for me that was from the word go. The moment I entered the set, I think and the locations, I felt very secure because हम सबके अपने areas बड़े defined थे, characters बड़े defined थे, तो इसलिए भी I think I felt very secure on this set. What about you, sir? Because you've been working for so long, आपने काफ़ी कुछ sets में witness किया होगा ऐसा similar. सेंस ऑफ सिक्योरिटी इसमें बहुत ज़बरदस्त है। जैसा कि अभी अनंत ने कहा, ललित ने भी कहा कि जब आप राइटिंग लेवल के ऊपर जब फिल्म इतनी अच्छी लिखी जाती है कि अगर कोई कैरेक्टर एक सीन के लिए भी आ रहा है तो वो इम्पैक्टफुल है और यूज़फुल है, इसलिए वो सीन में आ रहा है। और हर एक्टर को और हर कहानी में जितने भी लोग कर रहे हैं सबको ये पता है कि ये जो सीन है ये घटना इम्पॉर्टेंट है, व्यक्ति इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उस तरीके से जब फिल्म लिखी होती है तो फिर निश्चित रूप से जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी सबके अंदर होती है वो बहुत ज़बरदस्त है। And you almost start rooting for the other character. कि आप फिर इम्प्रेस करने के लिए काम नहीं करते, आप कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। तो इसमें प्रूव नहीं करना है किसी को, इसमें इम्प्रूव करना है। ये वाली पूरी की पूरी आपको हम सबकी वर्किंग में दिखाई देगा कि वी आर नॉट हियर टू प्रूव एनीथिंग, वी आर हियर टू इम्प्रूव ईच एंड एवरी वन। Also, they're here to make that you say, sometimes I feel I can get a tattoo done on those things. Prove मैं यहाँ prove नहीं improve होने के लिए आया हूँ। They also feel that we are trying our best to make the film look energetic, every frame and every scene to look very energetic, rather than we ourselves individually fighting for the space. Because at the end, if the film works, it benefits everyone overall. Absolutely. And that should be the prime motive of every actor. Only if everyone thought like that. Yes, I definitely think like that. I'm sure all of us think that way. What about you, Harsh? मुझे ऐसा लगता है जैसे ललित भाई ने कहा कि सीन बनाने में जब आप घुस जाते हैं ना तो क्या इनसिक्योरिटी है, क्या उससे आपको कोई लेना देना ही नहीं होता। आप सिर्फ अपना काम करते हैं और साथ वाले एक्टर को आप एलिवेट करते हैं अगर आप अपनी परफॉर्मेंस से, और वो आपको तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। दिस इज़ हाउ आई वर्क। सो दैट्स और ये इतनी कठिन फिल्म थी, इतनी कठिन लिखी गई थी क्योंकि सिचुएशन है, गैग्स इसमें नहीं है, यस, चुटकुले नहीं है इसमें, लेकिन सिचुएशन के माध्यम से आप कॉमेडी कर रहे हैं। तो ये इतनी कठिन थी कि हर आदमी अपने आप में इतना फंसा हुआ था कि उसको किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाने की इच्छा ही नहीं होती थी। उसको लगता था कि मैं इस सिचुएशन में फंसा हूँ, मैं इस सिचुएशन में कैसे अच्छे से निकल जाऊँ। तो ये जब ये लिखाई जब इतनी अच्छी होती है और बहुत अरसे के बाद 1 2 चाचा जो फिल्म है उसमें आपको गैग्स नहीं मिलेंगे, उसमें आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी कि जो चुटकुले आपने सुने हुए हों, कि कोई आप जो सोशल मीडिया पे हम और आप, ये पूरी सिचुएशन के माध्यम से निकला हुआ एक ऐसा ह्यूमर है। अगर एक लाइन में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप जो चाहते हैं जब वो नहीं होता और आप उसे करने का प्रयास करते हैं तब क्या होता है। Wow. तो ये, और खास करके तब जब एक टीम पूरी साथ में हो, तो टीम जो चाहती है जब वो नहीं हो रहा है और वो करने की कोशिश करती है
तो फिर ज़िंदगी में क्या क्या घटित हो जाता है, ये 1 2 चा चा चा। करेक्ट। Lovely. Well explained. But you know, Naira, if I talk about you, there was a time जब actresses को सिर्फ as a caricature use किया जाता था. As a decorative piece. Yeah, people used to say that we just want a good-looking girl to be there. Right. But we have had so many brilliant actresses who really know the art of acting, and of course, you've been one. Thank you. When But when she you is good looking also. yeah, of course she's good looking. But when you get important parts or roles that justify your skill, your talent, how do you feel? And even in this one, I feel you're playing somebody who's, I think you've not done this before, No, I and it's very unique for you as well. Yeah. See, I feel that if I'm doing 2 glamorous roles where I'm not really giving a lot of input, even though as an actor I try to create some flavor or some layer into it. I try that, even if it's not written for me, I'll develop some nuance or something which will be my own unique thing. So what I do is, when I am doing 2 glamorous, I make sure the other next 3 will be absolutely different. No makeup. I'll land up being a pregnant woman. I'll land up being a serial killer. I've done that. Yeah. My every role has been very different. Even in Khaki 2, I was heavily pregnant, no makeup, black hair, absolutely deglamorized. So I choose my projects that way so that I'm never stereotyped. Wow. Okay. But talking about 1 2 Cha Cha Cha, when you are in a zone which you have to make people laugh also while doing what you're doing, I have heard it's the most difficult thing, and you really need to have that bonding, off screen as well. So how was that? Because the journey looked a lot of fun. It felt like off set भी आप लोग काफी मजे कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ. Yeah. Okay. No, I you think- go I think ahead. I have You go things ahead. to No, say. you go ahead. Okay. बट हाँ, एज यू सेड, Yeah. आई थिंक ऑफ स्क्रीन भी हमने बहुत मजे किए, और वो शायद विद अ स्क्रिप्ट लाइक दिस, विद अ प्लेग्राउंड लाइक 1 2 चा चा चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्वतः ही हो जाता है लाइक उस तरह का इंजॉयमेंट, उस तरह का कामराडरी. तो हम लोगों के बीच भी, क्योंकि हमने गाड़ी में मोस्ट ऑफ द फिल्म काटी है, एक जर्नी के बारे में है, और जर्नी में क्या क्या हो जाता है, क्या क्या और क्या क्या मतलब घट जाता है, दैट्स 1 2 चा 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 ऑल अबाउट. तो हाँ, मतलब शूट करते हुए राइट फ्रॉम कॉमेडी, एक्शन, लाइक इस फिल्म में सभी चीज़ है. तो हाँ, मतलब मज़ा काफ़ी आया शूट करते हुए, लाइक वाइल फिल्मिंग द सीन, वाइल रीडिंग अस डायलॉग्स, एंड इवन ऑफ द कैमरा एज वेल. तो हाँ, काफ़ी मज़ेदार जर्नी. एक्चुअली मेंटली जितनी ये चैलेंजिंग है, उतनी फिजिकली चैलेंजिंग भी थी Okay. वाइल शूटिंग. तो जब ऐसा होना, तो हर एक को दूसरे को ना मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग बहुत फिजिकली बहुत एक दूसरे को मतलब अपने आप को पुश कर रहे थे. Okay. तो उससे मुझे लगता है कि हमारी बॉन्डिंग और ज़्यादा बेहतर हो गई, क्योंकि हर कोई चाह रहा था, जैसे हम लोग वॉर पे होते हैं ना, तो वैसे चल रहा था हमारा कि नहीं डटे रहो क्यों कर लेंगे. इतना डिफिकल्ट क्यों? डिफिकल्ट था क्योंकि हमारे मतलब सिचुएशंस, आप जब फिल्म देखोगे तब आपको पता चलेगा कि सिचुएशंस भी उतनी डिफिकल्ट है सारी, और हम लोग जो शूट कर रहे थे वो भी उतनी ही रियल तरीके से कर रहे थे. तो वाइल शूटिंग ऑल्सो वो सारे एक्शन सीन्स, वैसे मौसम में शूट करना, वैसी जगहों पे शूट करना, ये सब थोड़ा चैलेंजिंग था. और हमने बहुत भागम भाग, तोड़म फोड़ सब है. चाचा ने बहुत भगाया हमें. चाचा ने बहुत चाचा ने बहुत भगाया हमें. So yeah, it's a crazy ride. Yeah. Literally it's a crazy ride. तो हम लोग कूदे हैं, फांदे हैं, गिरे हैं, दौड़े हैं, रगड़े गए हैं, गाड़ियाँ पहाड़ों से नीचे गई हैं, तो काफ़ी कुछ हुआ है. नहीं, और इसमें एक और चैलेंज ये था कि रियलिस्टिक होने के लिए जो गाड़ी की हालत आप देख रहे हैं पोस्टर में, ये रियलिस्टिक होने के लिए गाड़ी भी इतनी ही जर्जर अवस्था की मतलब रियल, जबकि ऐसा फिल्मों में होता नहीं है. हम बेहतर गाड़ी लेके आए हैं जो अच्छे से चले, अच्छे से रुके, जिसके सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी हों. लेकिन हमारे डायरेक्टर इतने पर्टिकुलर थे और इतने रियलिस्टिक थे कि वो गाड़ी को भी जो एक कैरेक्टर बन के आई है, तो वो जैसी दिख रही है बिल्कुल वैसी ही अवस्था की गाड़ी थी. तो उसको चलाना, 4 आदमी हम बैठे हुए हैं, और एक आदमी बंधा दोनों है. को भी जाता है, ललित आनंद भाई को उन्होंने एक आदमी कैसे गाड़ी बंधा हुआ चलाई है. है पूरी मेरे फिल्म तो में. गियर मारते मारते लेफ्ट आर्म के बाइसेप. इन दोनों ने चलाई है पूरी फिल्म में गाड़ी. तो वो भी बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जब आप यात्रा साथ में, आप रोड्स के ऊपर हैं, आप रात में भी हैं, दिन में भी हैं, आप गाँव की गलियों से भाग रहे हैं. कैसी गलियां?
जो अगर आपने देखा होगा तो कभी कभी कुछ सड़क जो है वो ईंट से बनाए हुए हैं, है ना, तो ईंट से बनाए उन गलियों के ऊपर आप जा रहे हैं, गाड़ी उस गली में घुस जाए बड़ी मुश्किल से उतनी चौड़ी है, उसकी ब्रेक लग जाए, उससे ब्रेक लग जाए, तो ये अपने आप में बहुत ही मतलब जिसको कहना चाहिए कि अप्रोच रियलिस्टिक थी, इसलिए इसमें इतने किस्म की चीज़ें तमाम आपको, बस गनीमत ये है कि बंदूकें और जो फायर है उसके बुलेट्स हैं वो आई वांट टू ऐड वन थिंग, इन्होंने सर ने एक बात मिस कर दी। एक सीन है जहाँ चाचा, आपने टीजर में देखा होगा, गाड़ी लेकर भाग जाते हैं, हाँ। और उस सीन में मैं चाचा की गाड़ी में चढ़ जाता हूँ और मुझे नहीं पता कि ये इतना बढ़िया गाड़ी चलाते, इन्होंने जो गलियों में गाड़ियां घुमा के मुझे झटके दिए हैं। मैंने बोला सर मैं आज बैठ गया आपके साथ, एंड इज सो गुड एज अ ड्राइवर। मैंने कहा सर मैं नहीं बैठूंगा, और हमारा वो गोरिल्ला टाइप था, उसके ऊपर सामने कैमरा लगा हुआ है, सर ने गाड़ी घुमाई, पूरे शूट को नहीं पता गाड़ी कहाँ गई, और फिर घुमा के शूटिंग करके वहीं लाकर खड़ी कर दी, और हमारी हालत खस्ता हो चुकी थी शूट करते करते। तो गाड़ी में थे, हम गाड़ी के पीछे भाग रहे देखो मैं तो गाड़ी के अंदर नहीं थी, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि काफ़ी लोग कहते हैं कि कॉमेडी बड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि आपकी कॉमिक टाइमिंग राइट होनी चाहिए, लेकिन कॉमिक टाइमिंग राइट कैसे होगी? इट इज़ ओनली व्हेन यू फील इट इन रियल, राइट? तुम्हारे सिचुएशंस और आपकी जो रियल फीलिंग होती है, आपके जो रियल किरदार होता है जो आप प्ले कर रहे हो, वो आप नेचुरली प्ले करोगे तो आपकी टाइमिंग वाइमिंग सब ऑटोमेटिकली प्लेस पे आएगी, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ नेचुरल कॉमिक फिल्म। तो आई थिंक इट्स मोर देन ट्राइंग टू क्रिएट कॉमेडी, इट इज़ अबाउट बीइंग इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ योर कैरेक्टर एंड देन नेचुरली इट बिकम्स कॉमिकल। Brilliant, got it. But this question is for everyone except you, sir, because I want to know who was actually intimidated by him, because he has this aura, and the first time I interviewed him, I was a little scared because I was like, okay, you know, he seems like a strict person, but once you start talking to him, he's quite chill. Very chill, yeah, yeah. very chill. But that's the first impression I got. But आप सब बताइए, how were you ever intimidated? मतलब मैं तो अभी भी बैठे बैठे थोड़ा इंटिमिडेटेड Come on, not possible. मुझको राणा जी माफ करना। हमने गाना रख लिया था, जब भी हमें लगता था हम गलती कर रहे हैं, गाना शुरू कर देखो वो क्या करेगी, नॉट पॉसिबल। Because now it's quite fun and chill and you know everyone's having fun. But yeah, set पे कैसा था? नहीं, सेट पे तो बहुत अलग है, मतलब अब एज इन वो सब, क्योंकि उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग और इंटेंस किरदार किए हैं, तो और उनकी बिलीवेबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ऑलमोस्ट आप मान ही लेते हो कि वो उसी तरह के हैं। पर आई थिंक जब से चाचा के अवतार में मैंने देखा है, हम लोगों ने साथ में काम किया है, तो बहुत ही क्यूरियस माइंड है। ही इज़ वेरी प्रेजेंट, ही इज़ ऑलवेज वांटिंग टू नो व्हाट्स हैपनिंग वेयर, एंड क्वाइट अ फन पर्सन। एंड ऑल्सो वो फन बहुत ऐसा हल्का फन नहीं है, इनके साथ बैठो तो ज्ञान भी ऐसा बह रहा होता है। हाँ, मतलब कहीं पे भी आई थिंक ही स्ट्राइक्स सच अ राइट बैलेंस which is yeah worth learning. So every time I sit with him, talk to him, there's always something you know you to take back home. Lovely. मैं सेट पे गया तो मैंने जब देखा उन्हें तो उनका सीन ही चल रहा था पहला, तो तब मुझे चाचा दिखाई दी, मतलब जो मैंने पढ़े थे उससे बेहतर चाचा मैंने देख लिए। तो बस वो अपने कैरेक्टर में थे, अपने किरदार में थे। तब उसके बाद तो कुछ मतलब यही नहीं था कि चाचा ही मिल गए हमें हमारे, तो वो बॉन्डिंग वैसे ही हो गई, फिर चाचा के साथ वाली बॉन्डिंग हो गई जो अब तक कायम है। Lovely. What about the two of you? मेरे साथ तो see I have had very cute scenes with him. Okay, mine was not about chaos Correct. and running around and stuff like that. Mine You was also call him चाचा ना, but no. So my scenes were very very more on the cuter side, more on the softer side. I'm in my feminine energy, he's on his masculine energy. You know, we were in that space. So initially I was very nervous कि मैं सर के सामने एक्टिंग करने वाली हूँ। भाई मुझे नहीं पता कि शुरुआत में ऐसी बहुत इंटिमिडेटिंग फीलिंग होती है, क्योंकि एक तो ही इज़ ही, ऊपर से हिज भाषा, ऊपर से हिज एक्सेंट, द वे ही स्पीक्स, और मेरे साथ मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सीधा सेट पे पहुंची हूँ। But I took it as a challenge. Like I like those challenges, right? I'm like, I am starring opposite him. Let's do something. तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे scenes आने लगे, and we had very nice scenes. तो एक हल्कापन, एक ease, एक feel good, एक comfort, एक contentment आने लगा.
and then it naturally became very easy between us. So earlier I was intimidated, but now I adore him. वो पूरा change हो गया है. Wow. Harsh, what about you? ही मेड अस फील सो कंफर्टेबल. उसका क्रेडिट सर को ही जाता है. हाँ. क्योंकि उन्होंने उस तरीके की, हम बैठते थे बहुत सारी बातें करते थे सेट पे, उनकी कहानियाँ, किस्से, और उनके पास इतना कुछ है आपको बताने के लिए, कहने के लिए. सो समय के साथ साथ वो इतनी अच्छी हमारी बॉन्ड हो गई और सबके साथ ही, और फिर उसी तरीके से हमने पिक्चर शूट की तो बहुत ही मज़ा आया और इंटिमिडेटेड तो बिल्कुल भी नहीं लगा. Wow, you guys are very confident because none of you felt intimidated, which is a good thing because obviously उसका all credit your सर को were, जाता है. but it's his credit that he Yeah. made us easily Yeah. Comfortable. He did not make us feel like, oh, you guys are kids. But तुम लोग Yeah. तो अभी आए हो, वैसी वाली कोई हमें feel नहीं कराया उन्होंने. Wow. But you know, talking about you, sir, of course, there have been so many changes in the film industry, and you have worked so closely with it for years. आज काफ़ी डिबेट्स चल रही है अबाउट द वर्किंग आवर्स एंड द वर्किंग सिचुएशंस इन द फिल्म इंडस्ट्री कि हम 8 आवर्स काम करना चाहिए या फिर नहीं, अगर 8 आवर्स में नहीं हो रहा सो वी विल गो बियॉन्ड इट. देयर आर दीज टू नोशंस दैट आर गोइंग ऑन. आपके हिसाब से व्हाट डू यू फील एज एन एक्टर इज़ करेक्ट फॉर यू, एंड यू नो ये जो पूरा वर्क आवर्स का डिबेट है इस पर आपका क्या राय है? मेरा मानना है कि 8 घंटे के ऊपर क्रिएटिव काम नहीं करना चाहिए. अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहते हैं तो आपको घंटों के ऊपर, हम अपना एक फ़ोन भी उठाते हैं तो उसकी बैटरी कितने घंटे तक चलती है, उसको आपको 3-4 घंटे, उसको हाँ. वापस आपको रिचार्ज करना पड़ता है. तो जब किसी मशीन को रिचार्ज की ज़रूरत है तो फिर मनुष्य को रिचार्ज की ज़रूरत क्यों नहीं होगी? बिल्कुल. तो 8 घंटे, अच्छा 8 घंटे में काम हो जाता है अगर वो काम आप अपने ऑफिस में करके आए हुए हों तो. अगर सेट के ऊपर भी ऑफिस का काम करेंगे तो फिर ये घंटों का स्ट्रगल आपका चलता रहेगा. तो स्क्रिप्ट या कोई भी शूट, अगर ऑफिस में आपका प्री प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त है और आप सॉर्टेड हैं, आपको क्लैरिटी है कि आप क्या शूट करने वाले हैं, तो आप विश्वास कीजिए 8 घंटे में आप जादू कर सकते हैं. 8 घंटे बहुत होते हैं. और 8 घंटे के ऊपर अगर आप स्ट्रेच करते हैं कोई चीज़ तो आपकी वर्क क्वालिटी के ऊपर असर पड़ता है. क्यों? क्योंकि ये है तो पूरा एनर्जी का ही खेल, बिल्कुल है तो पूरा का पूरा स्ट्रेंथ का ही खेल. वो अलग बात होती, हर आदमी के अंदर वो क्षमता नहीं होती कि वो 20 घंटे काम करे और बाकी के 4 घंटे में वापस तरोताज़ा हो जाए. एक आध दिन कभी स्ट्रेच करना पड़े तो चलता है, लेकिन स्ट्रेच करने की अगर हम आदत बना लें तो फिर ये मान के चलिए कि आपके जो डिलीवरी है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है. तो मैं इसका स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस बात का कि 8 घंटे का जो टाइम स्लॉट होता है आपको उसके ऊपर मास्टर करना चाहिए. वो 8 घंटे में काम कैसे ख़त्म होगा आपके द्वारा निश्चित किया गया, उसके लिए अगर आप वेल प्रिपेयर्ड आ रहे हैं अपने ऑफिस में, अगर स्क्रिप्ट के ऊपर आप चर्चा वहाँ करेंगे, सीन आप वहाँ पे कैसे ब्लॉक करना है वो डिसाइड करेंगे, आप नहीं अच्छा वे काम करते हैं, ये सीन नहीं था तो अब इस सीन को ऐसा कर लेते हैं, अगर वहाँ पे एक आध सीन में चीज़ें हो सकती हैं. लेकिन अगर मास्टर ऑफ द शिप क्लियर है तो आप विश्वास कीजिए 8 घंटे के ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. और करेंगे अगर आप, तो आप विश्वास करें इस बात का कि अगले दिन आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे अगर आप 8 घंटे के ऊपर काम करते रहेंगे. आप आदमी को उतना, जिसको कहना चाहिए कि ताज़ा होने के लिए, एनर्जी के लिए, क्योंकि अगर हम आपसे वर्कआउट भी करवा लें, कोई बहुत बड़ा वर्कआउट करने वाला आदमी हो और उससे कहें कि नहीं तुम 3 घंटे करते हो, अब तो तुमको प्रतिदिन 10 घंटे वर्कआउट करना है, तो क्या कर पाएगा? बिल्कुल नहीं. वो नहीं कर पाएगा. हम क्यों कहते हैं वर्कआउट में, उन्होंने कहा कि 7 दिन का वर्कआउट का आपका सेशन है तो 4 दिन करिए और 3 दिन बॉडी को रेस्ट दीजिए. क्यों? रिकवर होने के लिए. तो वो कौन सी रिकवरी है? तो उस रिकवरी को हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए. वो इमोशनल रिकवरी भी होती है, मेंटल भी होती है, फिजिकल भी होती है. और जो भी लोग अच्छा काम करते हैं या अच्छा काम लेना चाहते हैं, विश्वास कीजिए वो इस 8 घंटे के फॉर्मूला पे काम करते हैं. और 8 घंटे के फॉर्मूला पे काम अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ आप ये करना चाह रहे हैं कि कोई 10 दिन का काम है तो घंटे बढ़ा दो, पैसे तो 10 दिन के लगें, लेकिन आपको क्या करना है, 10 दिन के काम को आप 5 दिन में कर लेंगे. तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस बात का कि बिल्कुल निश्चित घंटे होना चाहिए, रिकवरी का टाइम देना चाहिए, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल,
और वो चीज़ जब आप करते हैं, हमारे एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, उनके साथ हमने काम किया हुआ है, सावन कुमार टाक जी, उनके साथ एक फिल्म की थी बहुत अद्भुत। 6 बजे तक वो शूट करते थे, अगर दिन का शूट है तो अगर मान लीजिए सीन बचा रह गया तो ये नहीं करते थे कि उसको 7:30 तक कर देते हैं, वो आधे घंटे पहले कि ये सीन बचा ही ना रहे, ये सीन हम शुरू ही ना करें, तो वो 5:30 बजे पैकअप कर देते थे। उनका ये मानना होता था कि हमको स्पिल ओवर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हम इसको कल कर लेंगे और फ्रेश उसमें करेंगे, और वो होता था। रेणुका जी ने एक फिल्म बनाई थी, दो फिल्में वो बना चुके हैं। मैंने उनके जैसा व्यवस्थित व्यक्ति की लिखी भी थी, डायरेक्ट भी की थी। अगर उन्होंने कहा है कि 10 o'clock से 6 o'clock उनकी शिफ्ट है, तो 10 बजे रेडी विद मेकअप नहीं है, अच्छा 10 बजे आप आइए, वाह और 6 बजे आपकी पैकअप है, आप 6:15 बजे अपनी मीटिंग रख सकते हैं किसी के साथ। आपको कभी ये रिक्वेस्ट नहीं किया जाएगा कि आप सर थोड़ा बढ़ जाइए। उसका कारण ही ये था कि वो प्रिपरेशन उनकी बिफोर हिटिंग ऑन द फ्लोर। तो जो भी लोग होते हैं, तो मैं तो इसका स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि 8 घंटे के ऊपर मैं भी नहीं करता। मतलब अगर आप ये पूरा अनुभव इनके साथ है, मुझे लगता नहीं, चाहे रात में किया हो दिन में किया हो, मैंने 8 घंटे के ऊपर इस पूरी फिल्म में, हमने रात में करना है, तो अगर आपने कहा सर सुबह 5 बजे तक चलेगी, तो मैं 7 बजे नहीं आऊँगा, मैं 9 बजे आऊँगा, ठीक है। तो जिसमें हम 8 घंटे, इसका ये मतलब नहीं कि हम काम नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल हम काम करते हैं। हम काम वो देना चाहते हैं आपको, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो इस समय का हमारा पोटेंशियल है। हम आपके साथ चीटिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि आप पैसे में हमारे साथ चीटिंग नहीं करते, आप रोल में हमारे साथ चीटिंग नहीं कर रहे, तो फिर मैं क्यों डिलीवर करते समय आपके साथ चीटिंग करूं कि हाफ हार्टेडली या हाफ एनर्जी में मैं उस काम को कर दूं। मैं आपके साथ पूरा काम करना चाहता हूं, पूरा मन लगा के करना चाहता हूं। उस मन लगाने के लिए कहीं ना कहीं आपको रिकवरी पीरियड देना चाहिए। Bilkul. How wonderfully you have explained this, and I think this puts an end to a lot of debates that have been going on for so long. But lastly, before I wrap this conversation, if everyone has to say in one line or one word why everyone should enter the theaters and watch 1-2 Cha Cha Cha, because I feel whoever goes inside will have a blast and will like the film. So what would it be? Good comedy. I think we are craving for good comedies. So yeah, so I think family entertainer है, तो पूरी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जाइए, फिल्म का मजा लीजिए। Okay. What about you, Lalit? आशुतोष सर के नए अवतार के लिए मुझे लगता है उनको अलग अंदाज में देखने Yeah, fantastic. Sir? आनंद के लिए, ये हमारा विश्वास है कि आप आएंगे तो आप आनंदित होकर जाएंगे। Wow. Naira? 2025 बहुत ही इंटेंस रहा है। हाँ. You need a good laugh. That is true. Come to the theaters. Ash, what about एक you? मस्त मौजिया फिल्म के लिए। Lovely. All the very best. Thank you so much for joining in. Thank you. Thank you. Thank so you. much. That was great. Thank you. Thank you.